Yes, so the question is, which of the following section is the proviso to section number 87, 88 and 89? Yes, so section number 87 talks about that if you give the consent to the other person to cause a harm and you are above the age of 18 years, so whatever the harm is being caused to you, that is not an offense. ठीक है, section number 88 बात करता है कि if a person gives the consent to the other and the other person in good faith for the benefit of the person does an act, if any harm is caused, that harm is covered by section number 88 and it is not an offense. Section number 89 जो है वो child की बात करता है कि अगर बच्चा है 12 साल से कम उम्र का है, उसको उसके good faith के लिए, उसके benefit के लिए कोई एक्ट करना है जिससे उसको हार्म हो सकता है, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस. सो द क्वेश्चन इज कि which of the following section is a proviso to section number 87, 88 and 89? proviso to section number 87, 88 and 89 का मतलब कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ये बताता है कि इनमें इन तीन सेक्शंस के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई एक्ट किया गया है तो उसके हम ऑफेंस नहीं मानते, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट हार्म कॉज किया जाएगा तो दैट इज एन ऑफेंस. सो सेक्शन नंबर, आई एम गेटिंग सर्टेन आंसर्स ओवर हियर, जस्ट होल्ड ऑन. So the people are giving section number 91 is the correct answer. Very good. देखो section number 91 जो है उसमें एक प्रिंसिपल भी आपका चलता है. section number 91 also talks about the concept of it is volente non fit injuria. Now volente non fit injuria generally means that if something is done voluntarily it is not an injury. ठीक है, जो आप सामने वाले की मर्जी से वॉलंटरली अगर उसको हार्म को एंटरटेन करने के लिए अपना कंसेंट अगर देता है तो जो भी आप उसको हार्म कॉज कर रहे हैं वो इंजरी नहीं माना जाएगा. दैट इज जनरली द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन नंबर 91. ये क्वेश्चन बहुत बार जनरल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अभी आज हम लोग ना सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 95 तक का जो एरिया है उसको कवर करेंगे. फिर आफ्टर दैट जितना भी अभी तक के हमने सेशंस किए हैं, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स में आज ऐप पे डाल दूंगा. यू पीपल कैन गो थ्रू विद दैट. ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. यू कैन रीड द क्वेश्चन. लिखा है कि Z is thrown from the horse and is insensible. A surgeon finds that Z required to be trepanned. A, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit, performs the trepan over Z and recovers his power of judging himself. Under such a circumstance, A's act is not culpable by virtue of which of the following sections? 87, 89, 90 or 92? Yes. सिचुएशन अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आंसर्स भी दिए जा सकते हैं. Yes. Let me see. 4 people have given answer. Section number 92 जो है वो जवाब आप लोग दे रहे हैं. ठीक है, सेक्शन नंबर 92 जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी वैसे डिस्कस किया था. सेक्शन नंबर 92 बात करता है कि जब सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर कोई एक्ट करना है, if that person is insensible, that person is not able to give his consent, and the other person in good faith for the benefit of the concerned person जो भी कर रहा है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. सेक्शन नंबर 92. अब सेक्शन नंबर 92 में ना कुछ एक इलस्ट्रेशंस हैं. देयर आर 4 इलस्ट्रेशंस ओवर देयर. सो वो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस आप लोग करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन इट इज रिलेटेड टू द इलस्ट्रेशन इटसेल्फ. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. कुछ एक सवाल इजी रहेंगे, कुछ एक सवाल जो है यहाँ पे टेक्निकल भी हो सकते हैं. सो हमें दोनों ही तरीके से देखना है कि what kind of questions can be there in the exam. Yeah, so next question is related to the magazine. Section number 94 की बात कर रहा है. Section number 94 is based on the magazine. मेरे ख्याल से many of you can give the answer to this. Yes, options पढ़ के सही आंसर जो है वो अगर आप लोग दे पाएं. Yes, section number 94 is based on which of the following maxim? The number one is it is qui peseate viris luaxo viris, and the other one is phrases furore sui penier
The next one is de minimis non-curate lex, and the last one is actus ne invito factus est nisi mens actus. ठीक है, est nisi actus या mens actus करके भी इसको रेफर करते हैं. देखो सेक्शन नंबर 94 जो है वो ऑप्शन नंबर मैं आप लोगों के पहले जवाब देख लूं जस्ट. सो ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत इजी सवाल है. देखो सेक्शन नंबर 94 जो है आपका वो बात करता है कि अगर एक व्यक्ति विदाउट हिज ओन विल ड्यूरेस के अंदर, कंपल्शन के अंदर अगर कुछ भी कर रहा है, सो दैट विल बी रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 94. लेकिन वहां पे सेक्शन नंबर 94 के अंदर दो चीजें जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर है. सेक्शन नंबर 94 कहता है देयर इज द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट डेथ. और जो ऑफेंस जो एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है दैट इज नॉट द ऑफेंस ऑफ मर्डर, that is not the offense of murder, neither it is an offense against state. ठीक है, ये दो exceptions हैं. Number one is the threat must be the threat of instant death, and number two is whatever the act a person has to do under the duress, that of act must not be the offense of murder, or it should not be an offense against state. ठीक है, so that offense must not be punishable with death, है ना. तो ये वहां पे सेक्शन नंबर 94 के अंदर मेंशन्ड है. और जो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, actus ne invito factus est nisi mens actus. That is an act done by a person without his will, an act done by a person without his will is not his act, or is not an offense, ऐसे भी कहा जाता है. An act done by a person without his will is not his act, or it is not an offense. ये जो de minimis non-curate lax वाला है maxim, it is related with section number 95 and the other two maxims. ठीक है, other two maxims इनकी मीनिंग्स जो है आप लोग पहले मैक्सिम लिख लीजिए. ठीक है, मैक्सिम लिखने के बाद इसका जो मीनिंग है वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूं. ठीक है, पहले मैक्सिम लिख लीजिए. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूरियस से रिलेटेड कोई भी अगर मैक्सिम आएगा तो वो जनरली सेक्शन नंबर 84 से रिलेट करेगा. तो एक हमने ऑलरेडी एक पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक ये भी आपके सामने. ठीक है, दोनों का मैक्सिम्स लिख लो, बीच में जगह छोड़ देना, मैं आपको मीनिंग्स इनके लिखवा देता हूं. एनीवन ऑफ यू हु नोज द मीनिंग ऑफ दीस टू मैक्सिम्स, यस और नो करके जवाब दे दो. एनीवन ऑफ यू? सुष्मिता के सर इनको लिखते जाए या बाद में लिखिए. देखो अभी तो आप क्योंकि क्लास चल रही है ना, तो यू मस्ट गो टू द राइटिंग ऑफ द मीनिंग्स. बाकी जब मैं आपको नोट्स दे दूंगा सो उसके बाद आप फेयर नोट्स जो है ना उस टाइम पे प्रिपेयर करना. अभी तो जो क्लास में चल रहा है ना, यू मस्ट गो थ्रू विद दैट. अभी तो जो जॉटिंग्स हैं या जो आपको पर्सनल अपने रेफरेंस की चीजें रखनी है उसको आप लिखते जाएं. ठीक है, नोट्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा, उसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शंस करनी है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, शालिनी इज रेजिंग हैंड. शालिनी, यू नो द मीनिंग ऑफ द अदर टू मैक्सिम्स? यस. बी का मीनिंग पता है, इस वन है ना. ठीक है, मैं आपको जस्ट या जो फर्स्ट मैक्सिम है ना दैट इज दिस वन, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए. It refers to he who does a wrong when drunk must be punished when sober. He who does wrong when he is drunk must be punished when he is sober. ठीक है, तो बाकी जितने भी मीनिंग्स है मैक्सिम्स के वो साथ ही साथ में डिस्कस आपके साथ करता रहूंगा. Yeah, Sarita is giving the answer to the maxim related with section number 95. That is, law takes no account of preference. It is de minimis non-curate lex का जो मीनिंग है वो सरिता ने आपको शेयर किया. ठीक है, ये सारे मीनिंग्स जो आपको साथ साथ मिलते जाएंगे. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन जो इसी से रिलेट करता है. नाउ यू पीपल रीड द क्वेश्चन ओवर हियर. आई एम रीडिंग इट, आप लिखते जाएं. अ स्मिथ सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स and forced by the threat of instant death to take out his fools and
tools आएगा यहाँ पे, to take out his tools and to force the door of the house for the dacoits to enter and plunder it. कि there is a gang of dacoits. Generally ये जो आपका illustration है section number 94 का, उससे relate कर रहा है. What offense, if any, has been committed by the Smith? Does Smith has committed any offense under 325, 391, 390, or it is no offense? What kind of threat is given? That is the deciding factor. ठीक है, what kind of threat is given? That is the deciding factor. क्योंकि यहाँ पे जो threat है वो instant death का है, instant death का है, और जो offense करने के लिए कहा जा रहा है, that is somehow related to the offense of dacoity. So the offense of dacoity, section number 390 की अगर हम बात करें तो it is not punishable with death or it is not an offense against state. तो सेक्शन नंबर 94 का जो हमारा जर्नल एक्सेप्शन है वो अप्लाई होगा, एंड दिस इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है, इट इज नॉट एन ऑफेंस. लेकिन अगर यहाँ पे अगर थ्रेट ऑफ ग्रीवियस हर्ट होता ना, अगर यहाँ पे थ्रेट ऑफ ग्रीवियस हर्ट होता, तब हम इसको एक्सेप्शन में नहीं लेके जा सकते थे, फिर हमें इसको जो है ऑफेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इट इज लाइक दैट. बाकी अब यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी सिर्फ इलस्ट्रेशन या सेक्शन नंबर 94 की अगर हम बात करें तो उसी से रिलेटेड है, सो इससे बाहर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है. लेकिन समाव अगर अलग तरीके से सवाल बन के आए, सो वी मस्ट नो कि इस चीज को कैसे ऑफेंस जो है वो बनाया जाएगा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कौन देता है. दैट इज ए इंटेंडिंग टू किल बी मिक्सेस पॉइजन इन बीज फूड बट सीज see his cousin takes the food and dies. State the liability if any of A. Yes. Now it is again related with the earlier old case laws. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है that A is not liable and exempted from killing C. देखो how we can exempt this person. The other option is A is not liable as he never intended to kill C. ये भी नहीं लगेगा. थर्ड ऑप्शन जो है लिखा है कि A is liable for killing C by invoking the principle of transfer of malice. perfectly fine. सेक्शन नंबर 301 से ये रिलेट करता है. लेकिन देखो अब C ऑप्शन है ना, तो C ऑप्शन वैसे तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन बिफोर मार्किंग द C ऑप्शन हमें लास्ट ऑप्शन भी जरूर पढ़ना है, दैट बोथ A एंड B आर करेक्ट. तो A और B जो है वो दोनों ही गलत है, तो द ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर टू दिस. ठीक है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया. The next question is, which section grants immunity to a man from criminal charge with respect to the act committed committed under compelling circumstances forced by necessity? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी. फटाफट आंसर दे दिया, सवाल पढ़ते ही आंसर आ जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज बीइंग गिवन इन सेक्शन नंबर 81, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की ही यहाँ पे जो है वो बात की जाती है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. चलिए, सो ये जो नेक्स्ट सवाल है, इट इज टू बी सीन इन रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 86. ठीक है, सेक्शन नंबर 86 मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाउ द नॉलेज इज टू बी इम्प्यूटेड अगेंस्ट अ पर्सन. एक व्यक्ति जब कोई ऑफेंस कर रहा है, that person is voluntarily intoxicated himself, but he cannot frame a mens rea, or he cannot, we can say, frame any intention or knowledge, but we are making that person liable on the basis of the presumed knowledge. Section number 86 का principle था. Question है आपके सामने, that a man who consumed too much liquor took his knife from his house and went along the road shouting his intentions to kill B, with whom he had quarreled earlier and killed C, who tried to pacify him. What offense, if any, did A committed? Yes, culpable homicide not amounting to murder, murder by way of transfer of malice, the third one is murder, and the fourth one is no offense. But is the best suitable answer to this particular question? Best suitable answer. अब यहाँ पे बहुत लोगों के जो ओपिनियंस है वो डिफर कर रहे हैं. सम ऑफ यू आर सेइंग ए. ठीक है, कसक इज गिविंग आंसर सी, इट इज मर्डर. ओके,
शालिनी सेइंग बी ट्रांसफर ऑफ मैलिस। शालिनी सवाल को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ यू आर वी कैन से टिल्टेड either at option number A or at option number C. देखो अब यहाँ पे we have to apply a bit of conceptual clarity over here. Just give me a second. या देखो अब इस केस में हुआ क्या ना, देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, he is intoxicated, ठीक है। Now after the intoxication this person went out, took his knife and he is shouting, और इसकी ये बी को बुला रहा है लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ, सी के साथ झगड़ा हुआ एंड ही किल्ड सी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैलिस तो बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस इसलिए नहीं है क्योंकि ये बी को मार रहा होता और गलती से सी मर जाता तब ट्रांसफर ऑफ मैलिस लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिखा है that ये लिखा है ना, that he took a knife from his house, went along the road shouting his intentions to kill B with whom he had quarreled earlier, कि B के साथ तो पहले कभी झगड़ा हुआ होगा, लेकिन C जब आया, C उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसने C की हत्या कर दी। तो ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं है क्योंकि B तो मौके पे मौजूद है ही नहीं। नंबर टू कि इसे हम जो है मर्डर में लेके जा नहीं सकते। मर्डर में इसे इसलिए नहीं लेके जा सकते बिकॉज व्हेन सेक्शन 300 इज टू बी एप्लीकेबल, the intentions of the person or the knowledge of the person should be very clear. अब आपको अगर सेक्शन नंबर 300 का ब्रॉडर नॉलेज अगर है तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो बातें कहूंगा। देखो सेक्शन नंबर 300 की एप्लीकेशन कब होती है? सेक्शन 300, अब यहाँ पे इंटेंशनली तो हम कह नहीं सकते बिकॉज दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, वी कांट से ही कैन हैव दैट पर्टिकुलर मेंजरिया दैट ही कैन किल समवन, बट द पॉइंट इज कि नॉलेज के बेसिस पे क्या इसको हम लायबल करें या नहीं करें। सो नॉलेज के बेसिस पे लायबल करने के लिए सेक्शन 300 का जो फोर्थ पार्ट है उसे प्रूव करना पड़ता है, दैट अ पर्सन हैज द नॉलेज that he is likely to cause the death of the person and the situation is imminently dangerous and there is no excuse of taking such risk. तो ये पूरा जो आपका सेक्शन नंबर 300 के फोर्थ पार्ट का जो पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। that the act is imminently dangerous and everything, ठीक है। तो now because section 300 के फोर्थली पार्ट को आपको प्रूव करने के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत रहती है। So at that point of time we can't say that it is an offense of murder, but मर्डर से जो नीचे की जो पनिशमेंट है दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यहाँ पे मैटर जरूर जाएगा, ठीक है। तो इट इज एन ऑफेंस that can be dealt according to section number 304 IPC, that is culpable homicide not amounting to murder. रीजन मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ मैलिस बिल्कुल नहीं है। मर्डर को प्रूव करने के लिए आपको एडिशनल चीजें प्रूव करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे इमिनेटली डेंजरस एक्ट जैसा कुछ दिखता, यहाँ पे तो इमिनेटली बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्ति रोड पे जो है नाइफ लेके तो गया, लेकिन द एक्ट इज नॉट दैट मच इमिनेटली डेंजरस। नंबर टू, he is shouting, he has the intentions to kill B, but वो एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में ऐसा कह रहा है, प्रोवाइडेड अगर शायद वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन इज डूइंग एवरीथिंग, वी कांट से दैट द रिक्वायर्ड इंटेंशन और मेंजरिया और वी कैन से द रिक्वायर्ड नॉलेज इज देयर टू मेक द पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, सो इट शुड बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मर्डर आप कैसे बता रहे हो? मर्डर लगाने के लिए आपको नंबर वन या तो इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव करना होता। अब ए हैज नो इंटेंशंस टू किल सी तो वहां समझाने वगैरह आया ना, ही हैज ट्राइड टू पेसिफाई हिम, लेकिन ए की कोई इंटेंशन सी को मारने की नहीं थी। नंबर टू, क्या ए के नॉलेज में था? तो नॉलेज में भी सिर्फ नॉलेज से बात तो बनेगी नहीं, नॉलेज के साथ साथ एडिशनल पैरामीटर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। सो एंड दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चन एंड देयरफॉर वी कांट मेक दिस पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, rather he should be liable for section 304 IPC, that is culpable homicide not amounting to murder. Coming to the next one, just
ठीक है, सो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वी कैन से सिंपल क्वेश्चन है दैट द एलिमेंट्स of which section of the code should be necessarily present in order to claim the defense of section number 79. ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जब आप 79 का डिफेंस लेने आते हो तो होना उसका जरूरी है। सेक्शन नंबर 34 की बात हो रही है, 52 की बात हो रही है, 52 कैपिटल है और नन ऑफ द अबव। यस, अब आपको ये देखना है कि इन सेक्शंस में क्या क्या लिखा गया है। सुष्मिता ने तो जवाब दे दिया, सुरेंद्र हैज आल्सो गिवन द आंसर। ठीक है, सो बी आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखो सेक्शन नंबर 34 में कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल है, 79 का कॉमन इंटेंशन से कोई वास्ता नहीं है, 52 में गुड फेथ की बात है, 52 कैपिटल ए में हार्बर की बात है। अब हार्बर से 79 का कोई वास्ता नहीं है, 34 से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 52 that a person has done something mistakenly by the mistake of fact in good faith, तो गुड फेथ क्योंकि जरूरी है, so it is related with section number 79 और we can say section number 76 से बाकी के जितने भी sections हैं जहां पे गुड फेथ एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक, बहुत इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए अगला सवाल भी इजी है, लाइक मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के साथ रिलेट करती है? इट इज रिट्रीब्यूटिव इन नेचर, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, इट इज प्यूनिटिव इन नेचर और बोथ एंड। यस, रिट्रीब्यूटिव का मतलब क्या? बदले की भावना से प्राइवेट डिफेंस लगाते हैं। प्रिवेंटिव मतलब क्या? बचने के लिए लगाते हैं। प्यूनिटिव मतलब क्या? एक व्यक्ति को पनिशमेंट आप देना चाहते हैं जो वो कर रहा है उसके लिए, या फिर बोथ एंड की। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, चलो everyone is given the correct answer, that is B. So private defense is preventive in nature. It is preventive in nature, neither it is retributive nor it is punitive. ना तो ये retributive है ना punitive। चलिए coming to the next one। अभी एक मैं साथ में अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ही हमारे सेक्शन नंबर 100 तक कवर हो जाएंगे ना, ठीक है, यू पीपल हैव टू गिव अ टेस्ट फॉर दैट। द टेस्ट इज related to the objective questions as well as it will be a subjective test। तो subjective test में जो आपका एरिया कवर हो रहा है that is, एक तो कॉमन इंटेंशन से सवाल आ सकते हैं या फिर जर्नल एक्सेप्शंस का जो एरिया है वहां से भी सवाल आ सकते हैं। so be ready for that। the moment will complete till section number 95 और we can say 106। तो इसके बाद आपका जो है ना एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों होगा। but let me complete firstly with these particular section only, then we can go for that। आप साथ साथ आई होप रिविजन्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 45 of the code denotes what? Life of a human being, life of a mammal, life of a human being and life of an animal, और लाइफ ऑफ either human being or an animal। अब देखो सेक्शन नंबर 4 बड़ा ही इजी सवाल है। आपको अगर सवाल का जवाब बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं भी पता हो, ठीक है, तब भी हम सही सवाल तक पहुंच सकते हैं, कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो लाइफ ऑफ अ मैमल आईपीसी में कहीं मेंशन नहीं है, लाइफ ऑफ अ मैमल जैसा कोई सेक्शन मेंशन नहीं है। लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड लाइफ ऑफ एन एनिमल दोनों एक सेक्शन में आएंगे नहीं। ईदर लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और लाइफ ऑफ एन एनिमल ये भी नहीं आएगा। तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं भी पता था तब भी हम थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे अप्लाई करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो एवरीवन इज गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। फैक्चुअली तो मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही चल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली बीच बीच में परेशानी है, बीच बीच में अलग अलग ऑप्शंस पे आप लोग मार्क कर जाते हैं, उसी को सुधारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे फंस हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ विच लीगल प्रोविजन any such thing which is declared to be punishable under any other law, any law other than IPC will also be an offense। ठीक है, अब बिना सेक्शन नंबर 40 खोले जवाब देना है। by virtue of which legal provision any such thing which is declared to be punishable under any law other than IPC will also be an offense। yes, so अब यहाँ पे शायद वाला सवाल है, शायद वाला सवाल है। देखो पहली चीज सुरेंद्र मना कर रहे हैं, कहते सर डी है, नन ऑफ द अबव। कनिका इज अगेन सेइंग डी। रविंद्रजीत का ऑप्शन जो है वो बी आ रहा है।
देखो अब आपको सेक्शन नंबर 40 है ना, सेक्शन नंबर 40 का जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इफ आई यूज टू से, तो फर्स्ट पार्ट कहता है दैट एनीथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 40 का फर्स्ट पार्ट सिर्फ आईपीसी की ही बात कर रहा है, लेकिन आपने अगर फर्दर जो पार्ट्स है उसके वो अगर ठीक से नहीं पढ़े तो आप ठीक आंसर तक शायद ना पहुंचे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 40 निकालेंगे, जस्ट टेक इट आउट। सेक्शन नंबर 40 में इसका आंसर जो है पहले ढूंढते हैं, जस्ट टेक इट आउट। यस, देखो सेक्शन नंबर 40 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है दैट एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन the word offense denotes a thing made punishable by this code. So anything which is punishable under IPC is an offense as per section 40 clause 1. लेकिन बीच में क्या है, exception। exception कह रही है that except something which is mentioned in the chapters or sections mentioned in clause 2 and 3. अब clause 2 कह रहा है in chapter 4 and 5 capital A and in the following sections namely, अब ये कुछ एक sections की बात है, ठीक है, जैसे कि ये स्टार्टिंग के sections punishment से relate करेंगे, फर्दर जो sections हैं ये abatement से relate कर रहे हैं, ठीक है, तो 187 ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेट करेंगे, बाकी कुछ एक सेक्शंस काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइंस एटसेट्रा वहां से रिलेट करेंगे। सो द ऑफेंस यहां से समझना है, ये the offense denotes a thing punishable under IPC, that is this code, or under any special or local law as hereinafter defined. तो 40 clause 1 part 2 है ना, 40 part 2 that is saying कि इन sections में ये जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, जो भी offenses इन sections के अंदर fall कर रहे हैं, the word offense denotes a thing punishable under IPC or under any special or local law as hereinafter defined. तो special और local law जो है ये define किए गए। special law क्या है कि किसी भी subject matter को लेके अगर कोई special law बनाया गया है तो उसे हम follow करते हैं, ठीक है। and similarly just सुष्मिता एक मिनट के लिए रुक जाइए, लेट मी कंप्लीट इट, है ना, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। एंड इसी के साथ साथ जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, दैट इज एंड इन सेक्शंस, दिस पर्टिकुलर सेक्शन द वर्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग when it is when the thing is punishable under the special or local law is punishable under such law with the imprisonment for 6 months or upwards with or without fine. So इन सेक्शंस को लेके तो ऑफेंस का वही मीनिंग रहेगा जो रखा गया है किसी भी लॉ के अंदर, लेकिन इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर जो चीजें मेंशन्ड है दैट इज नॉट ओनली related with the IPC, rather they are related with the special or local laws also. So it means अब आप सवाल पे अगर वापस आए, अगर आप सवाल पे वापस आए तो लिखा है that by virtue of which legal provision anything which is declared to be punishable under any law other than IPC would also be an offense. तो सेक्शन नंबर 40 का पार्ट 2 जो है वो आएगा, क्योंकि 40 के पार्ट 1 में तो सिर्फ आईपीसी की बात है, पार्ट 4 कोई है नहीं, ठीक है, और जो बी ऑप्शन है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस सुष्मिता, ये बिल्कुल सही है। सर मुझे इतना ही बोलना था, जैसे 40 क्लॉज मतलब वो क्लॉज लिखा है ना, हाँ क्लॉजेस नहीं है वो, दैट वी कैन से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा बस सर यही बोलना था, मतलब अगर हमको रीड वैसे करेंगे ना कि सेक्शन 40 पैरा 1 पैरा 2, हाँ नहीं आप उसको जैसे पार्ट्स की रेफरेंस से चला सकते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि पैरा 1 पैरा 2 एंड पैरा 3 उस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लॉज वर्ड जो है वो मेंशन करना यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन देखो ना जैसे अब ये सवाल लिखा है, ठीक है, सो दे आर नॉट मेंशनिंग इट एज पार्ट और पैराग्राफ्स, ठीक है, तो वैसे तो मेंशन नहीं है, तो जब इस तरीके से लिखा जाता है तो या तो सबसेक्शन के तौर पे पढ़ते हैं या फिर हम उसको क्लॉज के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन बिकॉज वी नो व्हाटएवर इज रिटन इन सेक्शन 40 द क्लॉजेस और पार्ट्स आर नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, तो हमें इसको जिस तरीके से आप इसको रेफर करेंगे, लाइक इट कैन बी इन पार्ट्स और इट कैन बी इन पैराग्राफ्स, ठीक है। सर एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड, मैंने शायद इसलिए लिखा था ना क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ पे सब सेक्शंस तो है ही नहीं, तो इसका शायद डी तो नहीं होना चाहिए, तो मैं पूछ रही थी। नहीं यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना कि क्लॉज एटसेट्रा तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन होता, बिकॉज वो क्लॉजेस नहीं है, ठीक है, सेक्शन 40 सिर्फ एक ही सेक्शन है, उसी सेक्शन में सारी चीजें जो है वो मेंशन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
ठीक है, इसका ऑप्शन मिल गया ना कि ये सवाल अब ऐसा है कि जो ट्विस्ट कर जाता है कि हमने सेक्शन 40 में जनरली जब हम समझते हैं तो हम ये कहते हैं दैट एज पर सेक्शन 40 एनीथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी इज एन ऑफेंस, बट समथिंग व्हिच इज पनिशेबल इन एनी अदर लॉ, is it punishable under IPC and can we call it as an offense? The answer is yes. सेक्शन नंबर 40 का जो सेकंड पार्ट है that will tell you this. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, अब ये याद हो जाएगा। और जो पार्ट 3 है ना इसका, जो 6 मंथ्स वाला है, उसका भी ध्यान रखना, वो पनिशमेंट वाला एरिया पूछ लेते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए, सो ये यहाँ पे अब केस लॉ बेस्ड सवाल है। केस लॉ बेस्ड सवाल है, एक कोटेशन दिया गया है। ठीक है, अगर ये कोटेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लिखा है इट वाज हेल्ड दैट व्हेन कॉग्निटिव फैकल्टीज आर नॉट इंपेयर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपेयर्ड एंड ओनली द विल और इमोशंस आर अफेक्टेड, देन इनसेन इंपल्सेस आर नॉट डिफेंस। दोबारा से पढ़ रहा हूं, व्हेन कॉग्निटिव फैकल्टीज आर नॉट इंपेयर्ड, मतलब व्यक्ति की जो कॉग्निटिव फैकल्टीज है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो बिल्कुल ठीक है, बट ओनली द विल एंड इमोशंस आर अफेक्टेड, दैट द पर्सन इज, वी कैन से, अंडर द इररेजिस्टिबल इंपल्स। इररेजिस्टिबल इंपल्स को अगर मैं हिंदी में कहूं तो अप्रतिरोध्य आवेग कहा जाएगा, ऐसा गुस्सा जिसपे कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर इनसेन इंपल्सेस हैं तो क्या ये डिफेंस होगा? द आंसर इज नो। इनसेन इंपल्सेस या इनसेन इंपल्सेस जो है, या इररेजिस्टिबल इंपल्स भी कहा जाता है, इररेजिस्टिबल इंपल्स। इररेजिस्टिबल इंपल्स का मतलब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए और गुस्से में आने के बाद कुछ करे, सो बहुत ज्यादा गुस्से में आने के कारण से दैट पर्सन मे not have control over his body but he might have control over his mind। तो अपने दिमाग को अभी भी कंट्रोल कर सकता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम इंसैनिटी नहीं मानते हैं। इररेजिस्टिबल इंपल्स या इंसेन इंपल्सेस जो कहा गया है, ना ये इंडिया में डिफेंस है, ना ये इंग्लैंड में डिफेंस है, ये कहीं पे डिफेंस आपको नहीं मिलता है। और क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के.एन. शाह, कादर नशीर शाह के केस में ये कोर्ट ने कहा था। ठीक है, इसको आप लिख लेना, दैट इन क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के.एन. शाह या कादर नशीर शाह, it was held that insane impulses are not a defense। insane impulses या irresistible impulse लिख लो, these are not a defense under section 84। सेक्शन 84 के अंदर ये डिफेंस नहीं है। बाकी की जो केसेस है ना, अब जैसे जो 3 और केसेस है, मिर्जा घानी बेग का केस बहुत बार पूछते हैं, ये भी आपके 84 से रिलेट करेगा। दिस वन इज आल्सो रिलेटेड विद 84, तो ये है तो 84 से रिलेटेड, लेकिन दिस पर्टिकुलर कोटेशन दैट इज द रिलेटेड टू द इररेजिस्टिबल इंपल्स, इट वाज गिवन इन क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के.एन. शाह जजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो बाकी जो जजमेंट्स है ना, इनके जो ब्रीफ शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में आप लोग अगर जानते हो तो उसी से रिलेटेड सवाल है। दैट सेक्शन नंबर 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी। एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कितने समय तक मैक्सिमम जो है वो रखा जा सकता है? जवाब आ रहे हैं, जजेस 3 मंथ्स, 3 मंथ्स परफेक्टली फाइन। 3 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह की इंप्रिजनमेंट में बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम इज 3 मंथ्स। द ऑप्शन इज गिवन, सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 73। ठीक है, अगला सवाल जो है इसका जवाब देखते हैं क्या रहेगा। लिखा है, क्वेश्चन है, अ स्कूल टीचर विद अ व्यू टू मेंटेन डिसिप्लिन punishes a 10 years student with simple punishment। ठीक है, एक स्कूल के मास्टर साहब है, उन्होंने एक व्यक्ति को, उसने बच्चा है, उसने डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया तो उसको 10 साल का बच्चा, उसको पनिशमेंट दे दी, हाथ खड़ा करके करने को कहा होगा। द टीचर इज लायबल फॉर सिंपल हर्ट, द टीचर इज लायबल फॉर डेफामेशन, द टीचर इज गिल्टी फॉर असॉल्ट, और द टीचर कैन टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ द कोड। यस, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर ही दिया, पर आप लोग भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डी ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो, whatever the teacher is doing, it is in good faith for the benefit of the child, and the age of the child is less than 12 years, and therefore and साथ के साथ implied consent of the guardian is there। ठीक है, implied consent होता है, सेक्शन नंबर 89 का जो डिफेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई सिंपल हर्ट नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
चलिए, सो नेक्स्ट वन जो है दैट इज, क्योंकि फॉरेनर जैसे ही हमें दिखा तो फॉरेनर देखते ही कौन सा सेक्शन ध्यान में आ जाता है, सेक्शन नंबर 4 आ जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन से देखते हैं ये सवाल रिलेट करता है या नहीं। क्वेश्चन है दैट जैक अ फॉरेनर स्टैब्ड जिल अनदर फॉरेनर इन अ फॉरेन वेसल ऑन द हाई सी। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। चलो देखो, 2016 का पेपर हुआ था ना, जब 2016 में मेंस का एग्जाम, क्रिमिनल लॉ के पेपर में आईपीसी का पहला सवाल सेम सिचुएशन से रिलेट करता है। सेम 2016 का पेपर उठाओगे ना, यू विल गेट टू नो क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस मेंस एग्जामिनेशन, आईपीसी का पहला सवाल इसी से रिलेट करता है। बस यहाँ पे जैक और जिल का नाम है, वहां पे ए और बी लिखा होगा। ठीक है, जैक अ फॉरेनर स्टैब्ड जिल अनदर फॉरेनर इन द फॉरेन वेसल ऑन द हाई सीज। Both Jack and Jill were brought to AIIMS Delhi for the treatment. Jill died in the hospital. Jack is also available in AIIMS Delhi and undergoing the treatment. Under the above situation, mark the correct preposition with respect to the applicability of IPC. ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक बनता है। नंबर 1 is that IPC is not at all applicable to a foreigner and hence Jack cannot be tried in India. चलो ये तो ठीक लगता है। आगे के ऑप्शंस अब देखो ना, इतना पढ़ने पे जवाब नहीं देना ना कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, अगर इससे कुछ और सुटेबल मिलता है तो उस पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है that as the deceased and the accused belong to the foreign countries and the offense has been committed on the high seas, IPC is not applicable to Jack and hence he cannot be prosecuted in India। ये ठीक लग रहा है। अगला पढ़ते हैं that as IPC is applicable to Indians and foreigners alike, thus A या फिर जैक समझ लो एक ही जगह, must be tried in India। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि IPC is applicable to the Indians and foreigners, but the offense is not committed in the Indian territory and therefore option number C is not applicable। और लास्ट ऑप्शन है आपका that is both A and B are independently correct। तो सही जवाब जो है वो आप लोग मेरे ख्याल से दे पाएंगे। Let us see। ठीक है, सो पहले देखो ना, पहले जैसे ही हमने सवाल पढ़ा तो हमें देखने में लगता था कि ए आंसर होना चाहिए, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें ये देखने को मिला कि बी भी ठीक है। अब दो आंसर जो है इस क्वेश्चन में ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जनरली पीपल आर टिल्टेड टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर डी। सर एक्चुअली ए स्टेटमेंट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि फॉरेनर पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब वो आपने जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला जजमेंट बताया था, सर इंसान कहीं का भी हो, लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस मैटर्स। तो इंसान फॉरेनर है तो आईपीसी तो एप्लीकेबल होगा ना। कर इंडिया की टेरिटरी पे ऑफेंस होता है, सेक्शन 4 का हम 3rd क्लॉज देखें, जो मतलब वो वाली बात करता है कि मतलब कहीं से भी ऑफेंस कमिट करो, मतलब अबेटमेंट वाला सही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा एक Any काउंटर person किया है enters सुष्मिता ने। targeting a एनीवन computer हु, resource। ठीक मैं समझ गया। एनीवन हु वांट टू गिव अनदर काउंटर टू दिस? तो इसमें दोबारा से काम करो, सिचुएशन नंबर ए और बी को एक बार फिर से आप लोग अपने आप गो थ्रू करें एंड यू ट्राई टू सी दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेस्ट सुटेबल। जस्ट ट्राई टू गो फॉर दिस। लेट अस सी हाउ the appreciation of the options is being done by you. Yes, sure, why not? Sir, if we go through section 4 and if we see the clause 3, then it is clearly mentioned any person in any place without and beyond India, but like there although it is said targeting any computer resource or anything like that, but still in IPC it is written any person at any place. So ठीक है, सो अगेन जो आंसर जो है ये आप कौन बात कर रहे हैं? कैन यू रेफर योर नेम प्लीज? कनिका। या कनिका, ठीक है। देखो कनिका, जहां तक सेक्शन नंबर 3 की बात है ना, सेक्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट दैट इफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसके ऊपर आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम चार्जेस अगर लगा रहे हैं तो हम सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। दैट इफ अ पर्सन इज टू बी रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस जो है आईपीसी के अगर अप्लाई हो रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के ऊपर जो है आईपीसी की चार्जेस लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 188 हम लोगों ने रेफर किया था। ठीक है, सो जैसे आप लोगों ने मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड दैट ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट। नाउ लेट अस कम टू द
आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो ए और बी, अब ए और बी में क्योंकि हमारा डिफरेंशियल आ रहा है ना, या सो ऑप्शन नंबर ए को अगर आप एक बार ध्यान से दोबारा से देखें, लिखा है आईपीसी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू अ फॉरेनर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, आप लोग क्या इससे एग्री है? जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया, डू यू पीपल एग्री विद दिस दैट आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ फॉरेनर, और साथ में एंड लिखा है। ठीक है, तो अगला वाला फ्रेज जो है वो फर्स्ट फ्रेज के साथ ही समझा जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स? यस। सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1, sorry 4 clause 2, is it not, it states that the application of IPC can be with the foreigners also? Yes. किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले we have to understand that how to appreciate the concerned option। ठीक है, आप लोगों ने जैसे ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा और फिर डी पढ़ा, आपने देखा कि ए और बी दोनों में जो चीज लिखी है वो डी है, वो मतलब डी में कवर हो रही है और दोनों ही चीजें ठीक होनी चाहिए। लेकिन जब दो ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हो लेकिन एक जैसे है नहीं है, ठीक है, मैंने आपको जैसे कहा ना कि डी ऑप्शन ठीक होगा आपका, तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि हाँ ठीक है, लेकिन द पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, और सुष्मिता ने, मैं यही चेक कर रहा था कि कौन व्यक्ति इसका काउंटर क्रिएट करता है। ठीक है, अब जैसे आपने इस चीज को पकड़ना है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट व्हिच यू हैव टू रेफर, दैट आईपीसी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू अ फॉरेनर एंड हेंस चेक कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। ये गलत है। IPC is applicable to a foreigner, but in the concerned situation, whether JAC will be tried in India or not, that is a different matter. Option number C, it is also wrong. लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ना, बाकी सुष्मिता जो आपकी वो बात है ना मुबारक अली अहमद वाली, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ना, as the deceased and the accused belongs to a foreign countries, accused and the victim both are foreigners, offense is also committed in the on the high seas। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो जजमेंट था उसमें कोर्ट का ये कंक्लूजन था, कोर्ट का ये रेशो था कि अगर जो एक्यूज्ड है बेशक वो फॉरेन कंट्री में है, बट अगर ऑफेंस इंडियन टेरिटरी में हो रहा है तो इंडियन प्रोसिक्यूशन एजेंसीज विल हैव द पावर टू गो फॉर द प्रोसीडिंग्स। लेकिन इस कंसर्न सिचुएशन में the offense is committed on the high seas। high seas मतलब इंडियन टेरिटोरियल या इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स जो है उसकी लिमिट से बाहर है, and therefore IPC is not applicable to JAC and hence he cannot be prosecuted in India। so this should be the perfect option। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे किया हमने? ऑप्शन नंबर ए का आप लोगों ने ना एक चीज समझ ली कि देखो जैक का ट्रायल इंडिया में नहीं चल सकता, ये तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपने इस चीज को अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं समझा दैट आईपीसी इज एप्लीकेबल टू अ फॉरेनर और नॉट। इन्होंने कहा आईपीसी बिल्कुल भी फॉरेनर पे नहीं लगता है, जो कि गलत है। ठीक है, आई होप यू पीपल गॉट माय पॉइंट ओवर दिस। यस सुष्मिता, यू आर वेरी करेक्ट ओवर दिस। ठीक है, मैं जनरली ऐसी सिचुएशन ना, देखो हमने सेक्शन नंबर 4 पहले भी पढ़ा, जब सेक्शन नंबर 4 हमने पहले भी पढ़ा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी आपका आंसर अगर गलत आ रहा है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज आप जब ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन में आपने एक चीज को मिस कर दिया, इसको मिस किया। ठीक है, और जब इसे मिस कर दिया तो आंसर आप गलत ले जाओगे, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसीलिए आपका जो है रखा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज ना करे तो उसको मजा नहीं आएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं अगला सवाल किस चीज से रिलेट करता है। लेट मी कम ओवर दिस। ठीक है, ये अगेन बाउंटी कलेक्ट करने वाला सवाल है, मेरे ख्याल से सवाल पढ़ते हैं आंसर आ जाना चाहिए। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन क्राइम, दैट इज इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकॉम्प्लिशमेंट। अब ये पहला ही पढ़ के समझ में आ जाता है, पहले इंटेंशन फ्रेम होता है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर अटेम्प्ट होता है, फिर अकम्प्लिशमेंट की तरफ व्यक्ति जाता है। ठीक है, तो वैसे तो हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सीक्वेंस, बट बाकी अगर आप देखें तो सेकंड वाला प्रिपरेशन, इंटेंशन, अटेम्प्ट और देन अकम्प्लिशमेंट की बात करें तो प्रिपरेशन करने के बाद कौन इंटेंशन फ्रेम करेगा? अकम्प्लिशमेंट, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, इंटेंशन, ये रिवर्स में चल रहा है। मोटिव, प्रिपरेशन, attempt, accomplishment। motive is not at all a primary requirement in the crime and hence it should be eliminated। ठीक है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि यार मोटिव तो होना ही चाहिए, मोटिव होने के बाद प्रिपरेशन व्यक्ति करता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर अकम्प्लिशमेंट करता है, लेकिन बहुत बार, हजारों बार ये सवाल पूछा गया है कि क्या मोटिव एक ऑफेंस के लिए जरूरी है? इज मोटिव इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस? द आंसर इज नो। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोगों को? यस सरिता, इज इट विजिबल टू यू?
यस सर, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे ऐसे सवाल हिमाचल में भी पूछते हैं, ठीक है, सीक्वेंस पूछ लेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप सवाल उठाएं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, तो वहां पे सवाल पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एटसेट्रा। चलिए अगेन मैच मेकिंग का सवाल है। मार्क द इनकरेक्ट मैच। डिसऑनेस्टली 24 में है, फ्रॉडुलेंटली 25 में है, रीजन टू बिलीव 26 में है। ठीक है, क्या ये तीनों ठीक है? अगर आपको काउंटरफिटिंग नहीं भी पता, if you don't know where the counterfeiting lies in the IPC, still if you know the other three options, you can reach to the correct one. अब आप ये भी बता दो कि counterfeiting IPC में कहां पे mentioned है? Yes, where counterfeiting is defined in IPC? Yes, section number 28. Very good. और अगर आपको ये पता हो कि 27 में क्या है, तो वो भी बता दो। 27 बात करता है, yes, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, in the earlier questions we have discussed it. Intelligent possession of a particular property is in the possession of a clerk, wife और servant. अगर उसके पास है तो section 27 चलेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हमें पता होनी चाहिए कि काउंटरफिटिंग कहां पे और 27 किसकी बात करता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो ना, कभी कभी जब आप इलस्ट्रेशंस बार बार पढ़ते हैं ना, तो इलस्ट्रेशन पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन से सेक्शन से रिलेट कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन देखा, सो इट अपीयर्स टू बी रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 92। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 92 के इलस्ट्रेशन से ये कहीं ना कहीं वास्ता रखता है। अब आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने सेक्शन नंबर 92 में पता है, 92 की इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी है और वो कहती है कि 92 के अंदर जो भी चीज आ जाएगी वो जनरल सेक्शन से कवर्ड है, वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन एग्जामिनर इलस्ट्रेशन को ट्विस्ट कर सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है कि ए इज इन अ हाउस व्हिच इज ऑन फायर विद जेड अ चाइल्ड, पीपल बिलो हाउस होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, ए ड्रॉप द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप नोइंग इट टू बी लाइकली दैट that they may fall and kill the child, but not intending to kill the child and intending in good faith for the child's benefit. By the fall child is killed. What offense has been committed? Yes, is it negligence, death by negligence? Is it grievous hurt? Is it culpable homicide amounting to murder? Or is this no offense? क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से जवाब आप लोग दे चुके होंगे। So you people are giving the answer, that is D, perfectly fine. ठीक है, it is not an offense because देखो ना testing factor क्या है? Testing factor ये है that whatever is done, it is done in good faith for the child's benefit. So consent of the child cannot be taken at that point of time, and neither the guardian nor any other person is available who can give consent on behalf of the child. और ये child की बात है तो सेक्शन नंबर 92 से कवर हो जाएगी। गार्डियन कोई है नहीं तो सेक्शन नंबर 89 यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, कुछ एक सवाल तो ऐसे आते हैं कि आप लोग बस देखते जवाब देने के लिए रेडी होते हैं। तो अगला भी देख लेते हैं, दैट हु गिव्स द करेक्ट आंसर। अगेन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी सेक्शन नंबर 4 से रिलेट कर रहा है। ए, हु इज एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर ऑफ अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट इन वुहान। ठीक है, आपको वुहान से बहुत सारी चीजें याद आएंगी। ठीक है, 2 साल पहले की मेमोरीज आ सकती हैं। Thus, by the applicability of which of the code, he can be tried and convicted of murder at any place in India wherever he may be found. Yes, what should be the correct answer? Wherever he may be found. Section 4, clause 1, clause 2, clause 3, or explanation number B. So most of you have given the answer. Tanu is saying A, Shikha is again saying A. ठीक है, section number 4 clause 1. ठीक है, section number 4 clause 1 क्या कह रहा है? Yes, Sushmita, is it correct? Option number A. Yes, sir. ठीक है, the person is an Indian citizen. An Indian citizen commits offense in a foreign country, he may be liable under IPC. As per IPC, the provisions will be there. ठीक है, और सेक्शन नंबर 3 कहता है wherever that person is found in India, so read together with section number 188 CRPC, so that person can be tried within India also. Just wait. चलिए, so
Next question again related with the initial provisions of IPC. मेरे ख्याल से पढ़ने पे इस सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। साथ में एक मैक्सिम भी ध्यान में रखना है, जनरली स्पेशली वाला जो एक मैक्सिम हमने डिस्कस किया था, that general special laws will have the priority over the special laws will have the priority over the general laws. लिखा है which section states that the act shall not apply to the provisions for the act for punishing mutiny and desertion of the officers, soldiers, sailors, airmen of the government of India or the provisions of any special or local law. Section 4 लगेगा नहीं, section 6 लगेगा नहीं, section 9 लगेगा नहीं, section 5 should be the correct answer. ठीक है, सेक्शन 5 में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी, ठीक है, और साथ के साथ वो मैक्सिम जो है ना, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसका भी ध्यान रखना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बेरिक्स में लिखा होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन इट इज रिलेटेड विद द जर्नल एक्सेप्शंस। ठीक है, लिखा है a police officer being ordered by court to arrest Y after due inquiry believing Z to be by arrest Z, he is guilty for, is he guilty for anything? अब देखो ना, आपको याद है कि ये 76 से रिलेट कहीं ना कहीं करता था, तो 76 एक ऑप्शन पे, 79 से बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए हम उस पुलिस वाले को लायबल नहीं कर सकते, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए भी लायबल नहीं कर सकते। सेम तरह का क्वेश्चन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट अ पर्सन under a mistake of fact bound by law to do something does something, whatever he is doing he is not liable for the act. ठीक है, he is not liable, section number 76 से रिलेट करेगा। लिखा है not guilty of an offense of wrongful confinement for his act falls under the ambit of section number 76. चलिए, coming to the next question, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे रखूंगा, so that the mind application is to be seen. लिखा है which of the following is not a judge as per section number 19. जैसे हमने पहले जितने अभी क्वेश्चंस किए हैं ना, approximately we have gone through till section number 95, वहां तक कुछ एक सवाल जो है बीच बीच में आते रहे हैं, so उन्हीं में से अब कुछ एक रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, सवाल है which of the following is not a judge as per the definition contained in section number 19? A magistrate exercising jurisdiction in charge of which he has the power to sentence, fine or imprisonment with appeal. ठीक है, next कह रहा है magistrate having jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence or fine or imprisonment without appeal. ठीक है, दोनों में ही, क्योंकि जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन हो रही है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों ही लोग जो हैं वो जज होंगे। ठीक है, बिकॉज ही इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। नेक्स्ट कह रहा है द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर ओनली टू कमिट for trial to commit the case for trial to another court. तो सिर्फ कमिटल का अगर आप एक काम कर रहे हैं, you are not acting as a judge, rather you are only performing the magisterial function. आप सिर्फ एक magisterial function में काम कर रहे हैं, कोर्ट का, जज का काम नहीं कर रहे। तो ऑप्शंस है which of the following option is not correct, है ना, which of the following is ये जो 3 पॉइंटर्स में लिखा है, इसमें से कौन सा जज की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है? लिखा है only 3, only 2, 2 and 3, 1 and 3। अब देखो, आपने किसी व्यक्ति को सेंटेंस सुना दिया, उस केस से अपील जा सकती है, डजंट मैटर, नहीं जा सकती, डजंट मैटर। सो 1 and 2 में जो कॉन्सेप्ट था, उन दोनों में ही जिन लोगों की बात थी, वो दोनों ही जो है जज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, बट एज फार एज द थर्ड पॉइंटर इज कंसर्न, ठीक है, थर्ड पॉइंटर इज कंसर्न, सो दिस पर्सन इज नॉट टू बी कॉल्ड एज अ जज। तो अब हमारे पास क्लॉज नंबर 3 से, ये जो पॉइंटर नंबर 3 है, इससे रिलेटेड 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है, 1, 2 and 3। लेकिन 1 के साथ भी 3 एडजस्ट नहीं होगा, 2 के साथ भी 3 एडजस्ट नहीं होगा, एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपका पब्लिक सर्वेंट से रिलेट करेगा। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हमने पहले किए ना, उन्हीं को एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा से सेक्शन क्वेश्चंस बीच में रखे गए हैं, ताकि आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ रिवाइज होते जाए। चलिए जवाब देंगे जल्दी से। ठीक है, सवाल आप लोग पढ़ लें। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पब्लिक सर्वेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 21। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सर्वेंट? कौन इनमें से पब्लिक सर्वेंट है? अ म्युनिसिपल कमिश्नर, यस और नो?
यस और नो करके बता दो, म्युनिसिपल कमिश्नर है या नहीं? इज म्युनिसिपल Yes, sir. कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट? ठीक है। कमीशन्ड ऑफिसर इन अ मिलिट्री? यस, Yes, sir. commissioned officer in the military. And the first one is an assessor assisting the court of justice. Yes, तो तीनों ही जो हैं, तीनों ही पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। यस और नो करके जवाब दे देंगे। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन जो है वो सभी लोग रेफर कर रहे हैं। देखो, municipal commissioner, commissioned officer in the military, and any person whosoever is giving assistance to the court of justice, all are public servants। ठीक है, तो ये जो आगे के आने वाले क्वेश्चन है ना, इनकी एक्सप्लेनेशंस मैंने साथ साथ रखी हुई है। ठीक है, यहीं से आप लोगों को एक हेल्प भी मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, अगेन ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग मूवेबल प्रॉपर्टी related with this, dishonestly related with this and this। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बराबर ये रखे गए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हिमाचल में ना ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के एग्जाम अगर देखें ना, तो लाइक क्रिमिनल लॉ के पेपर में खासकर ऐसे मैच मेकिंग के सवाल काफी हैं। आप ये मैच मेकिंग सिर्फ सेक्शंस की नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेक्शंस की नहीं, आपको चैप्टर्स में क्या क्या चीजें रखी गई है वो चैप्टर्स का भी ध्यान रखना है। कौन से चैप्टर में कौन सा एरिया कवर होता है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हिमाचल का एक प्रीवियस ट्रेंड ही कह लो कि कई सालों से इस तरह के सवाल जो क्रिमिनल लॉ के पेपर में पूछते हैं। क्रिमिनल लॉ के पेपर में 50 नंबर का अगर पेपर आता है ना, तो यू पीपल कैन अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल पेपर है तो लोग 45-46 नंबर तक भी लेके जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है मेरे ख्याल से इसका आंसर कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात। और इनमें से जो जजमेंट्स हमने अभी यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगी, कुछ एक जजमेंट्स का जिक्र हमने क्लास में किया भी था। इन अ जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द टर्म डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंट, वेयरइन it said that while the term dishonestly talks about wrongful loss to another, the expression fraudulent is wider and includes any kind of injury or harm to the body, mind, reputation, inter alia. Name the said of the aforesaid was held. Name the said case. Yes, कौन बताएगा? मेरे ख्याल से जैसे के.एन. मेहरा का जजमेंट है, इट इज रिलेटेड विद वो एयरक्राफ्ट वाला हमने डिस्कशन किया था कि 2 एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के कैडेट्स थे वो पाकिस्तान लेके भाग गए थे। ठीक है, बाकी की केसेस में से कौन सा ऐसा केस है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था और उसमें ये पॉइंटर हमने डिस्कस किया? मेरे ख्याल से जवाब जो है वो दिया गया है ए। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह 2011 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द जजमेंट इन विच द कोर्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द वर्ड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया था। ये केस का जिक्र भी बीच में आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह 2011 का केस है। ठीक है, इस दो केसेस हैं जो आपको इससे पूछे जाते हैं। कृष्ण कुमार करके भी केस है, उसका भी मैं आपको रेफरेंस जो है ना वो दे दूंगा। ठीक है, तो वो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट से रिलेट करता है। चलिए, सो इसका ध्यान रखना है ना, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह 2011 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोर्ट ने डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली का जो डिफरेंस है वो क्रिएट करके दिया था। बाकी की जो जजमेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो साथ साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा फंसोगे आप। लिखे इन विच केस द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द सर्टिफिकेट्स which are forged for being admitted in the college could be described as a valuable security। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई नकली सर्टिफिकेट बना के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जा सकता है। ठीक है, कनिका और सुष्मिता ने आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब ये श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाला एरिया कवर करते हैं तो वहां पे भी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी का ये जो श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस है ये आता है। लेकिन आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नहीं है,
वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन द केस ऑफ कान साहेब कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, केस का नाम आप लोग लिख लें, इट इज कान साहेब कालू पाटिल, के पाटिल इसको कहा जाता है, के पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The apex court held that the certificates which are forged from being admitted in the college could be described as valuable securities। अब मैं बताता हूँ, अब जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट है ना, कनिका एंड सुष्मिता आप लोगों ने जैसे बी ऑप्शन का आंसर दिया, बी ऑप्शन बताया कि ये श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला जो केस था वो होना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, एज फार एज आवर मेंटल साइकोलॉजिकल बिहेवियर इज कंसर्न, है ना, अब वो हम लोग ये समझते हैं कि अब बाकी के केस तो हमने पढ़े नहीं, ठीक है, एंड व्हेन वी हैव नॉट गॉन थ्रू विद द अदर केसेस, और श्री कृष्णा का केस हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज से रिलेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी, लेकिन उसमें ना फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट्स नहीं थे, उसमें फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट्स नहीं थे, उसमें बेसिकली जो है अटेंडेंस से रिलेटेड इशू था। एक व्यक्ति जो है उसने अपने फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने थे, अटेंडेंस एक्सेट्रा थी नहीं, तो उसके बेसिस पे वो केस जो था वो आया था। लेकिन फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट के बेस पे एडमिशन ले लेना वो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी का मैटर नहीं है, वो एग्जाम में अपीयर होने के लिए एक व्यक्ति आया था, उसने कुछ गड़बड़ करी थी, ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड विद दैट। लेकिन है क्या कि अब इस ठीक है, सुष्मिता सिंह सर गेस किया था, ठीक है, तो गेस वर्क डज नॉट बी प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन द एग्जाम्स, ठीक है। अब हिमाचल के पेपर में तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ दैट, बट यस द करेक्ट आंसर इज के पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको याद रहेगा कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी का केस इस चीज से रिलेट नहीं करता है, और इससे रिलेट क्या करता है, वो के पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के अगर आप एडमिशन लेने पहुंच जाएं तो वो सर्टिफिकेट एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, बिकॉज वैल्यूएबल सिक्योरिटी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यू विल गेट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट। चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 61, ए इंटेंशनली causes Z's death partly by illegally omitting food and partly by beating, what offense he has committed। पहले भी रिपीट हुआ था, दोबारा फिर से आया है, सही जवाब आज कौन देगा बता दीजिए। मैंने आपको पहले भी यही मार्क किया था, इंटेंशनली, और intentionally will always, if a person with the intention causes the death of the other, it is always a culpable homicide, and that culpable homicide will always and always turn into murder। So culpable homicide is murder if something is done with intentions। चलिए coming to the next one, just ठीक है, ये वाला सवाल भी रिपीट ही हो रहा है वैसे तो। सेक्शन नंबर 52 कैपिटल ए की कौन सी दो एक्सेप्शंस हैं, 52 कैपिटल ए की एक्सेप्शंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है, सेक्शन नंबर 130 एंड 157। मैंने आपको पहले भी बताया था 130 एंड 157 में जो है हार्बर करना किसी को एक अपराध माना गया है। 130 में जो पनिशमेंट है वो ज्यादा है, 157 में जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है, 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा। चलिए ठीक है, सो अगला जो सवाल है अगेन वेरी इजी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज देयर, ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग बहुत आराम से दे दोगे, ठीक है। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर किससे रिलेट करता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज मंजरिया के प्रिंसिपल से रिलेट किया है। डीपीपी वर्सेस बीएड का केस हमारा इंटॉक्सिकेशन से रिलेट किया है। आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स का केस हमारा नेसेसिटी के प्रिंसिपल पे है। और महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर वैसे तो सिमिलर इंटेंशन से रिलेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल भी कोर्ट ने साथ में बताया है कि इफ द एक्ट ऑफ द पर्सन इज रिफ्लेक्टिंग दैट ही इज रिप्रेजेंटिंग द अदर वन, देन ओनली द कॉमन इंटेंशन विल बी फ्री। तो क्योंकि यहाँ पे अगर कॉमन इंटेंशन लिखा है तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस। लेकिन ऑप्शंस में लगाते समय हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी ना हम ओएमआर में मार्क करते समय गलती कर जाते हैं, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। और इन ये जितने भी केसेस हैं लगभग हमने सारे केसेस वैसे डिस्कस भी कर लिए हैं।
Again, voluntary non-fit injuria is not attracted in which of the following sections? चलो इसका जवाब जो है वो कौन देगा? Voluntary non-fit injuria is not attracted to which of the following sections? ये थोड़ा सा अभी पहले ऐसा सवाल नहीं आया है. सेक्शन नंबर 87, 88, 89 और 90 से कौन से सेक्शन से वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का वास्ता नहीं है? ऑप्शन यू पीपल आर गिविंग इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 90. वेरी गुड. सेक्शन नंबर 90 जो है वो कंसेंट की बात करता है. वो ये कहता है कि कौन व्यक्ति कंसेंट देने के लिए कैपेबल है. 12 साल से कम उम्र का बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता. ठीक है. सिमिलरली a person whosoever is under giving consent under the misconception of a fact, or any person whosoever is giving consent under any fear of injury etc, that consent is not valid. ये सेक्शन नंबर 90 से रिलेट करता है. लेकिन बाकी के 3 सेक्शंस जो हैं वो हार्म एटसेट्रा की बात करते हैं और वो तीनों ही वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया से रिलेट करते हैं. और सेक्शन नंबर 91 कहता है कि these 3 are the exceptions. ठीक है. लेकिन अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट हार्म किया है, सेक्शन नंबर 91 के नीचे ना एक इलस्ट्रेशन है, मिसकैरेज से रिलेट करता है. उस इलस्ट्रेशन को जरूर फोकस करना, वहां से सवाल जरूर बनता है. ठीक है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. ये रिपीट हो चुका है, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा. सेक्शन नंबर 88 से रिलेट करेगा ये. क्वेश्चन नंबर 65 अगेन वी हैव डन इट राइट नाउ. कुछ एक रिपीट हो रहे हैं ताकि वो चीजें ध्यान में रहे. Next one is question number 66. Choose the correct option. Section number 34 relates to the specific substantive evidence. ठीक है. Section number 149 is the rule of evidence. Next one is the common object is under 149 and one of the objects are mentioned in 141. आपको सही चुनना है, इनमें से सही चुनना है. ठीक है. पहला कह रहा है कि section 34 relates to the specific substantive evidence. ठीक है. नंबर 2 कह रहा है 149 is a rule of evidence, जो कि बिल्कुल गलत है. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है that common object under section 149 must be one of the objects mentioned in 141, while the common intention may be the intention for the purpose of section number 34. And last one कह रहा है all of the above are correct. Yes. Yes. What should be the correct answer? बहुत सारे लोग साइलेंट हो गए. ठीक है. पहले सरिता ने डी कहा था, फिर बी कर दिया. ठीक है. Rishu is saying C is correct. Okay. ठीक है. So most of you are saying that C is correct. Definitely C is correct. ठीक है. Section number 34 is not a substantive evidence, rather it is a rule of evidence. Section number 34 जो है वो evidence से relate तो कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि section number 34 is a rule of evidence. But यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? It is a specific substantive evidence. Specific substantive evidence वो होता है जिसके basis पे acquittal convictions हो जाती हैं. Section number 34 जो है वो specific substantive evidence से relate नहीं करता है. 141 जो है वो रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, वो तो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है. लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है, दैट कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर 149 मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 141, व्हाइल द कॉमन इंटेंशन मे बी एनी इंटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 34. ठीक है. ठीक है. सरिता जैसे आप कह रहे हैं ना कि यू थॉट अबाउट इनकरेक्ट, ये एग्जाम में ना ऐसे सवाल जब भी आएंगे इसका ध्यान रखना कि कौन सी चीज पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी तरफ से सही आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो दिखता है कि गलत हो गया. ठीक है. तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं. ठीक है. छोटी छोटी गलतियां जो सुधारनी पड़ती है. चलिए, सो नेक्स्ट वन असर्शन रीजन पे. लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठाएंगे एचपीजीएस का तो यू विल गेट टू नो कि असर्शन रीजन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए. ठीक है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड थे, और इसीलिए लास्ट ईयर जो है जो एग्जाम था बहुत सारे बच्चों का इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि असर्शन रीजन वाले सवाल थे और टेक्निकल थे थोड़े से. खासकर जो आपका सिविल लॉ बनता है जहां पे एविडेंस का सवाल पूछे गए थे. लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ 149 मेयर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एनफ. तो असर्शन तो ठीक लिखा है,
रीजन लिखा है टू फास्टन द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 149 पार्टिसिपेशन इन द कमीशन ऑफ द एक्ट इज नॉट नेसेसरी। ये भी बिल्कुल ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द कमीशन ऑफ एक्ट जरूरी नहीं है, बिकॉज सिर्फ मेंबरशिप से एक व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाता है और उसकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है। दोनों ही ठीक है, तो वी कैन से बोथ आर ट्रू। ठीक है, अब आगे आते हैं that A and R are true, but R is not the correct explanation of R is the correct explanation of A. Next option है A and R assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. Third one is A is false, R is true. ये बिल्कुल नहीं होगा। A is true, R is false, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है A और B में से सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, सुष्मिता आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, सरिता ने मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे सर, जैसे हम हमेशा जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, तो कोई मतलब कोई ट्रिक होती है, कोई की होती है, मुझे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, डर लगता है मतलब इनसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम असर्शन और रीजन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एक तो पहले ये देखना है कि दोनों में जो चीज लिखी है वो ठीक है या नहीं। नाउ नंबर 2 इज इफ whatever is given in the reasoning part, ठीक है, जो रीजन बताया गया है, if it is related with the first one, ठीक है, and both are dependent upon each other, then जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, A and R are true but and R is the correct explanation of it, हम इसे मार्क करेंगे बिकॉज दोनों के एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंसी है। इंडिपेंडेंट एक दूसरे के साथ आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और ये सफिशिएंट है उसको लायबल बनाने के लिए। और नेक्स्ट कह रहा है कि 149, ठीक है, अब आप देखो ना, दोनों ही असर्शन और रीजन की अगर हम बात करें तो दोनों में एक कॉमन यार्डस्टिक क्या है, कॉमन यार्डस्टिक है क्योंकि दोनों ही सेक्शन 149 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों के बीच में कॉमन यार्डस्टिक आ गया तो इसका मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन देखा जा रहा है। गेटिंग? तो टू फास्टन द लायबिलिटी अंडर 149 पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल ठीक रीजन बताया। membership is required, so this is how we have to answer these assertion and reason questions। अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, we'll try to come forward with these particular type of questions in these sessions, ताकि और भी और clarifications जो है ना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। है ना, कि आपने सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन यार्डस्टिक है या नहीं। अगर कॉमन यार्डस्टिक आपको मिल जाए फिर ये देखो कि क्या दोनों इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो यू हैव टू रेफर कि दोनों ही ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, और अगर दोनों इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर, मतलब अगर और भी जैसे और क्वेश्चंस आएंगे ना तो उससे और क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। ऐसे में काफी सारे सवाल ना अगली जो हमारे सेट्स रहेंगे ना डिस्कशन में उसमें लेके आऊंगा। चलिए मैं 2-3 सवाल और करूंगा फिर सेशन क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, सो देयर इज अ मैक्सिम व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसका मीनिंग बहुत इजीली। सेक्शन 5 इज अ सेविंग क्लॉज टू सेक्शन नंबर 2, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट इज जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेट, इससे ये रिलेट करता है। मेरे ख्याल से अब तो याद हो गया मैक्सिम ये वाले। ठीक है, दैट जनरल लॉ will be superseded by the special law because de minimis non curate lex जो है 95 से रिलेट करता है। actus non facit rem जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंस रे की बात करता है। actus ने invite of actus वाला जो है वो 94 से रिलेट करता है। चलिए और 2 सवाल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल अगला है, ये काफी बार पहले भी पूछा गया है। ठीक है, एंड लेट अस डिस्कस दिस। लिखा है इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट एमएलए इज नॉट पब्लिक सर्वेंट। बताएगा कोई आप में से? एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, किस केस में कोर्ट ने जो है डिसाइड किया था? लेट मी सी। पहला जो ऑप्शन है दैट इज एसएस धनोआ वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट वन इज आरएस नायक वर्सेस एआर ऑन्थले। द थर्ड वन इज जेएम देसाई वर्सेस एआर ऑन्थले एंड द फोर्थ वन इज नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। So you people are giving the answer B। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है that is related with the principles of common intention, difference between common intention and common object etc. But as far as the option which you people are giving, that is RS Nayak versus AR Ontle,
This is a case in which the court has said that MLA is not a public servant. इसको मार्क कर लेना, याद रखना। और इसके साथ साथ मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 21 के अंदर ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी, तो वहां पे भी एक पॉइंटर था कि ये कौन सी कमेटी ने ये कहा था कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाएगा, तो वो आप अपने रजिस्टर में उसको जरूर एक बार चेकआउट करें। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। चलो, which of the following case is not related to the principle of mens rea? R versus Prince mens rea से रिलेट करता है, Sherraz versus G Redson भी mens rea से रिलेट करता है, Queen versus Tolson भी mens rea से रिलेट करता है, लेकिन बरेंद्र कुमार घोष का केस सेक्शन नंबर 34 से रिलेट करता है। Hence this is the case in which mens rea is not at all to be seen. So ये जितने हमने आज सवाल किए, ठीक है, this was sufficient for today. कल जो है हम इसके इस सेट के क्वेश्चन नंबर 100 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, जो रिपीट हो रहे होंगे उनको कोशिश करेंगे अवॉइड कर दें, ठीक है, तभी ये थोड़ा सा स्विफ्ट मैनर में चलेगी क्लासेस। बाकी रेस्ट किसी का कोई डाउट एटसेट्रा होगा तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें, ठीक है। बाकी रेस्ट आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ एंड बाकी रेस्ट टुमारो सेम टाइमिंग्स 7 PM। चलिए, थैंक यू सो मच। सर टेस्ट मैंने आपको कहा ना कि अभी जैसे हमारा प्राइवेट डिफेंस वाला एरिया खत्म हो जाता है ना, अभी प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सवाल यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, बिकॉज देखो ना सवाल बनेगा नहीं, आपके पास जनरल एक्सेप्शंस में से सवाल बन जाते हैं, प्राइवेट डिफेंस में से भी हमें साथ में उठाने पड़ेंगे। तो टिल सेक्शन नंबर 106 इज ओवर, आफ्टर दैट आई विल टेक द टेस्ट फॉर यू पीपल। टेस्ट का जो है ना वो आप कभी भी मॉर्निंग के टाइमिंग्स में दे सकते हैं, बिकॉज इवनिंग में क्लासेस में ज्यादा आपकी ना छूट नहीं सकता, क्लासेस आपको लगानी ही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट जो है वो मॉर्निंग में या जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता है, आप ईमानदारी से, जैसे आपको एक टाइम दे दिया कि 2 घंटे का या 3 घंटे का, तो उस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है टेस्ट करके मेरे पास भेज देना है, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट यू पीपल। एंड कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज में दिक्कत आती है तो उस व्यक्ति को उस तरीके से गाइड भी कर दिया जाए, ठीक है। बट एज फार एज क्लोजिंग ऑफ या वी कैन से पोस्टपोनिंग ऑफ द सेशंस आर कंसर्न, ऐसा नहीं होगा, बीच में कभी भी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो इस करके ऐसा अननेसेसरी छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।